आदाब है नाज़रीन, मैं आसिफ अली और आप देख रहे हैं रूबी उर्दू न्यूज़। सबसे पहले नजर डालेंगे अहम खबरों पर। वज़ीर आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने रियासत की आवाम को दी भोगी की मुबारकबाद, नेक तमन्नाओं का किया इजहार। बीआरएस रुकन असम्बली कौशिक रेड्डी के खिलाफ हुजराबाद पुलिस ने केसेस किए दर्ज, रुकन असम्बली डॉक्टर संजय ने स्पीकर से की शिकायत। इंदिरम्मा भरोसा पर अमलावरी को यकीनी बनाया जाए, बीआरएस कायद टी हरीश राव ने तेलंगाना हुकूमत से किया मुतालबा। हैदराबाद कमिश्नरेट हुदूद में चीनी मांझे की खरीदो फरोख्त करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन, ताहाल 148 अफराद गिरफ्तार, 88 करोड़ रुपए से जायद मालियती चीनी मांझा किया गया जब्त। पेद्दापल्ली में सड़क हादसा, बाप और बेटा फौत, सड़क पर दिलखराश मंजर, मुतल्लिका पुलिस ने की ज़ाब्ते की कार्रवाई। देखते हैं खबरों की तफसील। वज़ीर-ए-आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने रियासत की आवाम को भोगी और संक्रांत की मुबारकबाद पेश की है। उन्होंने अपने मुबारकबादी बयान में इस उम्मीद का इजहार किया है कि मज़कूरा त्यौहार रियासत की आवाम की ज़िंदगियों में खुशियाँ बिखेरेगा। उन्होंने इस तवक्को का भी इजहार किया है कि अगले साल में हुकूमत अवामी भलाई और फलाह के कई कामों को अंजाम देगी। साबिक़ रियासती वज़ीर और रुकन असम्बली बीआरएस टी हरीश राव ने तेलंगाना कांग्रेस हुकूमत से मुतालबा किया है कि वो राइतु भरोसा स्कीम पर मौसर अमल आवरी को यकीनी बनाए। नाज़रीन, इस खबर के साथ दीगर सियासी खबरों पर नजर डालेंगे। बीआरएस रुकन असम्बली हरीश राव ने संगारेड्डी में मीडिया से बात करते हुए बताया कि हुकूमत और वज़ीर आला रेवंत रेड्डी से उन्होंने मुतालबा किया कि वो इंदिरम्मा भरोसा पर अमलावरी करें और किसानों के साथ की जाने वाली धोखाधड़ी के सिलसिले को बंद करें। हरीश राव ने कहा कि कांग्रेस हुकूमत ने ना तो 2 लाख रुपए तक के खर्चात माफ़ किए और ना ही किसानों को फसल बीमा फराहम की जा रही है और ना ही रैतु भरोसा स्कीम पर अमल करने का आगाज़ करते हुए किसानों को 15,000 रुपये अदा किए गए। उन्होंने वज़ीर आला बशमूल उनके काबीना वज़रा से सवाल किया कि ये कैसा इंदिरम्मा राज है जिसमें ना तो किसान, ना तो कमज़ोर तबक़ात और ना ही SC, ST, BC और माइनॉरिटी अवाम खुश हैं। हरीश राव ने बताया कि बीआरएस दौर इख्तिदार में रियासत के किसानों और तमाम तबक़ात खुशहाली की ज़िंदगी बसर कर रहे थे। ఎక్కడ పోయినాయి డబ్బులు? మరి గాల్లే ఉన్నాయా? నువ్వు ఇచ్చిన చెక్ ఎందుకు పాస్ అయితలేదు? అయితే డమ్మీ చెక్ ఇవ్వాలి, లేకపోతే రైతుల్ని ప్రజల్ని మోసం చేయాలి. ఏంది దీని మీద స్పష్టత అడుగుతా ఉన్నా నేను. ఐ డిమాండ్ ద గవర్నమెంట్. మీరు 2,750 కోట్లు అడి ఇచ్చినామన్నారు. ఈ రోజు వరకు ఎందుకు రైతుల అకౌంట్లో డబ్బులు పడలేదు? ఎవరన్నా ఒకవేళ అధికారులు తప్పు చేస్తే వాళ్ళ మీద చర్య తీసుకోండి. ముఖ్యమంత్రి గారు చెక్ అంటే అది ఈ రాష్ట్రానికి ఆయన హెడ్, అది పాస్ కావాలి కదా. ఒకవేళ అధికారులు తప్పుదో పట్టించిండ్రా, చెక్ బౌన్స్ అయిందా, చెక్కు ఏదైనా దారి తప్పిపోయిందా, ఏమైపోయింది? ఎందుకు రైతుల అకౌంట్లో డబ్బులు పట్టలేవో అని నేను అడుగుతాను. అందరికీ రుణమాఫీ అని కొందరికే పరిమితం చేసిండ్రు రేవంత్ రెడ్డి గారు. ఇవాళ 2 లక్షల పైన ఉన్నటువంటి రైతులు చాలా మంది ముఖ్యమంత్రి గారు డబ్బులు కట్టండి మీకు వేస్తామంటే ముఖ్యమంత్రి మాటలు నమ్మి అప్పులు తెచ్చి వడ్డీలకు తెచ్చి డబ్బులు కడితే ఈ రోజుకు వారికి డబ్బు పడడం లేదు. అన్ని పంటలకు బోనస్ అన్నాడు, ఒక్క పంటకే పరిమితం చేసిండు. ఆ ఒక్క పంటలో కూడా సగం పంటకే బోనస్ ఇచ్చిండు రేవంత్ రెడ్డి గారు. పంటల బీమా పేరు మీద రైతుల్ని దగా చేసిండు రేవంత్ రెడ్డి గారు. కౌలు రైతులకు కూడా రైతు భరోసా ఇస్తామని దగా చేసిండు రేవంత్ రెడ్డి గారు. ఉపాధి హామీ కూలీలకు ఏదైతే కొత్త పథకం వీళ్ళు చెప్తున్నారో, ఇందిరమ్మ ఆత్మీయ భరోసా పేరిట చెప్తున్న ఉపాధి హామీ కూలీలకు కూడా దగా చేస్తున్నారు. రైతు భరోసా 15,000 ఇస్తామని చెప్పి ఇవాళ 6,000కే పరిమితం చేసి
దగా చేస్తా ఉన్నారు. అంటే అడుగడుగునా దగా చేసి ఇది రైతు వ్యతిరేక ప్రభుత్వము అని చెప్పకనే చెప్తున్నారు. వారి చర్యలు, ఈ ప్రభుత్వం యొక్క చర్యలే చెప్తా ఉన్నాయి ఇది రైతు వ్యతిరేక ప్రభుత్వం అని. ఎన్నికలప్పుడేమో అరచేతిలో వైకుంఠం చూపించి ఎన్నికలు అయిపోయిన తర్వాత రైతులకు మొండి చేయి చూపిస్తున్నాడు ఈ రేవంత్ రెడ్డి గారు. ఈ సందర్భంగా సంక్రాంతి పండుగకు ఊర్లలకు వెళ్తున్నటువంటి మా అన్నదమ్ముళ్ళు అక్కా చెల్లెళ్లకు నేను ఒక విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నా. పోయినసారి ఎన్నికల ముందు మీరందరూ కూడా ఊర్లలో పోయారు, కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వాన్ని గెలిపించారు. ఇప్పుడు ఒకసారి మీరు ఊర్లలకు వెళ్తున్నారు పండగకు. మనం అందరం కూడా ముఖ్యంగా వ్యవసాయ కుటుంబాల నుంచి వచ్చిన వాళ్ళమే. తల్లో తండ్రో తాతో నాయనమ్మనో అమ్మమ్మ रियासती वज़ीर सीताक्का ने आसिफाबाद में कोरम भीम के मुजस्मे पर फूल मालाएं पेश करने के बाद मीडिया से बात करते हुए बताया कि कांग्रेस हुकूमत कोरम भीम के उसूलों पर चलते हुए आदिवासियों की तरक्की और उनकी फलाह व बहबूद के लिए काम कर रही है। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने कोरम भीम के मुजस्मे के अतराफ अकनाफ के इलाके को सयाहती मुकाम में तब्दील करने के इक़दाम करेंगे ताकि लोग इस मुकाम को दूर दराज से यहाँ पर पहुँचे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस इख्तियार पर आने के बाद से आवाम से जो वादे किए गए थे इसे पाए तकमील कर रही है और 26 जनवरी से रैतु भरोसा इंदिरम्मा हाउसिंग स्कीमात का भी आगाज़ होगा, जबकि मुस्तक़बिल में भी मज़ीद इक़दाम किए जाएंगे। बीआरएस वर्किंग प्रेसिडेंट के.टी. रामाराव ने सीनियर रुकने पार्लियामेंट मंदा जगन्नाथम की मौत पर अफसोस का इजहार किया। उन्होंने साबिक़ रुकने पार्लियामेंट एम जगन्नाथम के क़यामगाह चंपापेट पहुंचकर उनके अफराद ख़ानदान से मुलाकात करते हुए इजहार हमदर्दी की। के.टी. रामाराव ने बताया कि सीनियर रुकने पार्लियामेंट जगन्नाथम ने तेलंगाना के हुसूल के लिए जो जद्दोजहद की थी इसे तेलंगाना की आवाम हमेशा याद रखेगी। उन्होंने कहा कि वो 4 मरतबा रुकने पार्लियामेंट मुंतखब हुए। नागर कर्नूल और महबूबनगर की तरक्की के लिए जो काम उन्होंने किया है वो नाकाबिल फरामोश है। నాగర్ కర్నూల్ పార్లమెంట్ నుంచి పార్లమెంట్ సభ్యుడిగా ప్రాతినిధ్యం వహించి తెలంగాణ ఉద్యమంలో ఒక కీలకమైన ఘట్టంలో ఆనాడు పెద్దలు కేసీఆర్ గారి పిలుపుని అందుకొని తను అధికార పార్టీ అయిన కాంగ్రెస్ పార్టీని వదిలిపెట్టి ఆనాడు ఉద్యమంలో భారతదేశ స్థాయిలో యూపీఏ ప్రభుత్వం మీద ఒత్తిడి పెంచాలనే ఉద్దేశంతో మాతో కలిసి వచ్చిన నాయకుడు, వివాదరహితుడు, సౌమ్యుడు, విద్యాధికుడు, అందరికీ ఆప్తుడు డాక్టర్ మందా జగన్నాథం గారు. ఒక మంచి వ్యక్తి ఈరోజు దాదాపు 21 రోజుల పాటు మృత్యువుతో పోరాడి వారు దివంగతులు కావడం అందరికీ కూడా బాధాకరం. డాక్టర్ గారు ఎప్పుడు కలిసినా ఒకటే మాట చెప్పేవారు, మీరు ఇంకా బాగా కష్టపడాలి, మన పార్టీ ఇంకా బాగుండాలి, తెలంగాణ బాగుపడాలి కోరుకున్న వ్యక్తి, ఒక విద్యావంతుడు, ఒక बीआरएस रुकने असम्बली कौशिक रेड्डी के खिलाफ हुजूराबाद पुलिस ने 3 मुख्तलिफ केसेस दर्ज किए हैं। तफसीलात के मुताबिक एक दिन कबल उन्होंने रुकने असम्बली डॉक्टर संजय से मुठभेड़ की थी और कलेक्ट्रेट ऑफिस में हुए इस झगड़े के मौके पर रियासती वज़रा भी मौजूद थे। नाज़रीन, इस खबर के साथ दीगर खबरों पर तफसीली नज़र डालेंगे मोहम्मद अख्तर के साथ। तेलंगाना के करीमनगर कलेक्ट्रेट के कॉन्फ्रेंस हॉल में मुनक़िदा जायज़ा इजलास में अरकान असम्बली की एक दूसरे को धकेल देने के वाक़े और हंगामारी के सिलसिले में हुजूराबाद के एमएलए कौशिक रेड्डी के खिलाफ 3 मुकदमात दर्ज किए गए। दोनों एमएलए कौशिक रेड्डी बीआरएस और डॉक्टर संजय कुमार कांग्रेस ने मीटिंग में कांग्रेस पार्टी से इन्हिराफ पर एक दूसरे के साथ झगड़ा किया था। करीमनगर के आरडीओ ने इतवार की रात बीआरएस रुकन असम्बली के खिलाफ 1 टाउन पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। करीमनगर डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरीज के चेयरमैन सत्तू मलेशम ने भी शिकायत दर्ज करवाई कि कौशिक रेड्डी ने उनके साथ नाज़ेबा सलूक किया। दूसरी जानिब संजय कुमार केपीए ने भी शिकायत दर्ज करवाई। शिकायतों की बुनियाद पर पुलिस ने हुजूराबाद के एमएलए के खिलाफ बीएनएस एक्ट के दफात के तहत
3 मुकदमा दर्ज किए। రైతులకి రైతు భరోసా 15,000 ఖచ్చితంగా మీరు ఇయ్యాలి. పోయిన 2 సీజన్లు మీరు రైతు భరోసా ఇయ్యలేదు అని ఇక్కడ కరీంనగర్ జిల్లాలో, ఉమ్మడి కరీంనగర్ జిల్లాలో రైతుల పక్షాన, తెలంగాణ రైతుల పక్షాన దాంతో పాటు ఇక్కడ రుణమాఫీ నా హుజురాబాద్ నియోజకవర్గంలో కేవలం 50% మాత్రమే అయింది, ఇంకా 50% కాలేదు. నా హుజురాబాద్ నియోజకవర్గంలో రైతులకి రుణమాఫీ చెయ్యాలని నేను డిమాండ్ చేశాను. నా దళిత కుటుంబాలకి సాచురేషన్ మోడ్ లో 18,500 కుటుంబాలకి మేము దళిత బంధు ఇస్తే, 2వ విడత దళిత బంధుని వీళ్ళు ఇయ్యకుండా మా దళితులకి ఇబ్బంది పెడతా ఉన్నారు. ఇలా ఖచ్చితంగా దళిత బంధు విడుదల చేయమని చెప్తే ఇవ్వడుగుతే 3 మంత్రులు, ఎమ్మెల్యేలు అందరూ కూడా మందబలం ఉంది కదా, అధికార బలం ఉంది కదా అని వచ్చి బెదిరించే ప్రయత్నం చేస్తా ఉన్నారు. మీరు బెదిరిస్తే భయపడేటోడు ఎవడు లేడా? ఖచ్చితంగా కేసీఆర్ గారి పక్షాన మేము నిలబడతాం. కేసీఆర్ గారు ఏ విధంగా అయితే రైతులకి 1,00,000 కోట్లు ఇచ్చిండో మేము రైతుల పక్షాన నిలబడతామని మాట ఇచ్చాం. అదే విధంగా మేము మాట ఇచ్చినట్టు నిలబడతా ఉన్నాం. ఎందుకు ఈ దౌర్జన్యం అని అడుగుతా ఉన్నాను. మంత్రులు, ఎమ్మెల్యేలు, అధికారులు సాక్షిగా నేను ఒక ఎమ్మెల్యేగా ఉన్నా ఎట్లా బయట పట్టుకొని నూకేస్తున్నారో ఒక్కసారి మీ అందరు కూడా చూడండి విజ్ఞప్తి చేస్తాను. ఒక దొంగ అయినా జగిత్యాల ఎమ్మెల్యే డాక్టర్ సంజయ్ ఎట్లయితే అమ్ముడు పోయిండో సిగ్గులేనోడు, అమ్ముడు పోయినోడు, ఎట్లా అమ్ముడు పోయినోడు అని మేము అడిగితే మైకించుకొని నువ్వు ఏ పార్టీ అంటే కాంగ్రెస్ పార్టీ అంటూ. మరి నిజంగా నువ్వు అంత పొగలువే అయితే డాక్టర్ సంజయ్ జగిత్యాల ఎమ్మెల్యే నువ్వు రాజీనామా చేయి. అదే కాంగ్రెస్ బీఫామ్ మీద గెలిచి చూపి చాతగాని దద్దమ్మలాగా కేసీఆర్ గారు పెట్టిన భిక్ష నువ్వు ఎమ్మెల్యేగా ఉండి దీంతో కేసీఆర్ గారిని నువ్వు విమర్శిస్తా ఉంటే, మీరు నోటికి వచ్చినట్టు మాట్లాడుతూ ఉంటే మేము చూసుకుంటా ఊకోవాలని అని మేము అడుగుతా ఉన్నాం. ఖచ్చితంగా నిలదీస్తాం, అడుగడుగున అడ్డుకుంటాం. ఖచ్చితంగా ఇచ్చిపెట్టే ప్రసక్తే లేదు. వాళ్ళు ఖచ్చితంగా ఇవాళ రైతులకి 15,000 రూపాయలు రైతు భరోసా ఇవ్వాల్సిందే. ఇందిరమ్మ ఇల్లు ప్రతి ఒక్కరికి ఇవ్వాల్సిందే. ఇలా వాళ్ళు ఇచ్చిన 6 గ్యారెంటీలు ఇవ్వాల్సిందే. जगतियाल के रुकन असम्बली डॉक्टर संजय कुमार ने बीआरएस रुकन असम्बली पी कौशिक रेड्डी के खिलाफ स्पीकर असम्बली जी प्रसाद कुमार से मुलाकात करते हुए शिकायत दर्ज करवाई, जिसमें उन्होंने कौशिक रेड्डी के रवैये पर कार्रवाई करने का मुतालबा किया। ये शिकायत करीमनगर कलेक्ट्रेट में इतवार को होने वाले एक इजलास के दौरान पेश आने वाले वाक़े पर की गई, जिसमें बीआरएस रुकन असम्बली कौशिक रेड्डी ने संजय कुमार के साथ बदतमीजी की और उनके साथ गाली गलौज करते हुए उन पर हाथ भी उठाया था। संजय कुमार ने इल्ज़ाम लगाया कि कौशिक रेड्डी ने न सिर्फ गाली गलौज की बल्कि इजलास के दौरान उनको ढकेल दिया। उसके बाद संजय कुमार ने पीर के रोज़ स्पीकर से मुलाकात करके कौशिक रेड्डी के खिलाफ कार्रवाई की दरख्वास्त की है। तेलंगाना हाईकोर्ट ने जस्टिस बी विजय सेन रेड्डी ने किसानों की जानिब से फार्मासिटी के क़याम के खिलाफ पुरअमन एहतजाज की इजाज़त देने अहदेदारों को हिदायत दी है। जस्टिस विजय सेन रेड्डी ने एसीपी इब्राहिमपट्टनम की जानिब से किसानों को एहतजाज की इजाज़त मनसूख करने से मुतालिक 2 जनवरी के अहकामात को मुअत्तल कर दिया। अदालत ने कहा कि पुलिस अवाम की जानिब से इजहार नाराज़गी के हक़ को छीन नहीं सकती। किसानों ने रंगारेड्डी ज़िले के याचाराम मंडल में फार्मासिटी के क़याम के ख़िलाफ़ एहतजाज के लिए एक्शन कमेटी तश्कील दी है। किसानों की जानिब से दाखिल की गई दरख्वास्त में अदालत को बताया गया कि एसीपी ने पुरअमन मार्च की इजाज़त से इनकार किया है। तेलंगाना के आसिफाबाद और ज़िले के रासपल्ली गांव में मुर्गों की लड़ाई का रकम की शराइत के साथ एहतमाम करने वाले 10 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। एक इत्तला पर टास्क फोर्स की टीम ने इस मुकाम पर छापा मारते हुए मज़कूर अफराद को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने उनके पास से 3,020 रुपये नकद, 6 मोटरसाइकिलें, 10 मोबाइल फ़ोन और 4 मुर्ग़ ज़ब्त किए। मुलज़िमीन को मज़ीद कार्रवाई के लिए इस गाँव पुलिस के हवाले कर दिया गया।
ज़हनी तौर पर मुतासरा खातून के साथ जिनसी ज़्यादती की गई। ये शर्मनाक वाक़या रियासत तेलंगाना के ज़िले मेदक में पेश आया। फौरी तौर पर तफ्तीश शुरू कर दी गई और मुलजिमीन को गिरफ्तार कर लिया गया। जगंटा के सब इंस्पेक्टर चैतन्या रेड्डी ने इतवार को मेदक ज़िले के मासाइलपेट मंडल के रामंतापुर में पेश आने वाले वाक़े की तहक़ीक़ात का इंकशाफ किया। उन्होंने बताया कि इस महीने की 8 तारीख की सुबह 30 साला खातून जो ज़हनी तौर पर मुतासिर है, रामंतापुर मौजू के करीब नेशनल हाईवे 44 के किनारे खड़ी थी। इसी असना में तूपरान के सैयद अफरोज़, चेकिंग का बिस्वाराज और बिहार का एमडी सोहेल एक वैन में मुर्गियों का लोड ले जा रहे थे। उसकी तन्हाई का फ़ायदा उठाते हुए तीनों ने नौजवान खातून को ज़बरदस्ती सुनसान इलाके में ले गए और उसके साथ इज्तिमाई तौर पर जिनसी ज़्यादती की और फिर फरार हो गए। इस महीने की 10 तारीख को रामंतापुर के एक शख्स ने अपनी भैंस के लापता होने के बाद चगन्ना पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई। इस मदरी के वाक़े का उस वक्त पता चला जब पुलिस भैंस की तलाश के दौरान रामंतापुर स्टेज के करीब एक होटल की सीसीटीवी फुटेज की जांच कर रही थी। एसआई ने बताया कि तीनों मुलजिमीन को गिरफ्तार कर लिया गया और मुतासरा को मेदक भरोसा सेंटर भिजवा दिया गया है। तेलंगाना के ज़िले पेद्दापल्ली में पेश आए सड़क हादसे में बाप और बेटा हलाक हो गए। यह हादसा ज़िले की गोदावरी खन्नी गांधीनगर रोड पर आज सुबह की अवलिन सातों में उस वक्त पेश आया जब कार सड़क पर खड़ी लॉरी से टकरा गई। हनुमान नगर गोदावरी खन्नी का सिंगारेनी वर्कर सतीश अपने ख़ानदान के साथ हैदराबाद से वापस आ रहा था कि उसकी कार सड़क पर खड़ी लॉरी से टकरा गई। हादसा इतना ख़तरनाक था कि सतीश की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसके बेटे सतवेक की गोदावरी खन्नी के सरकारी अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। इस हादसे में 3 दीगर अफराद भी जख्मी हो गए जिनका इलाज जारी है। हैदराबाद के नवाही इलाके एलबी नगर के एक लॉज से ड्रग मुंतकिली के रैकेट को पकड़ा गया है। तफसीलात के मुताबिक बेंगलुरु से ड्रग्स लाकर हैदराबाद में फरोख्त का मंसूबा था। प्रेसिडेंसी लॉज पर धावा करते हुए 4 नौजवानों जयपाल राज, रुको और राजू और उनके साथी को गिरफ्तार किया गया है। बताया गया है कि गिरफ्तार शुदगान के कब्जे से MMDS ड्रग्स, 4 सेलफोन और एक कार को जब्त किया गया है। पुलिस गिरफ्तार शुदगान से पूछताछ कर रही है। संक्रांति की तातीलात की वजह से शहर के बाज़ इलाकों से अवाम की बड़ी तादाद आबाई मुकाम पर चली गई हैं। ख़ासतौर पर कुकटपल्ली, दिलसुख नगर, शेखपेट, कुतबुल्लापुर, श्रीलिंगमपल्ली के अलावा बाज़ इलाकों में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान ट्रैफिक में कमी देखी गई है, जो सड़कें उमूमन मसरूफ़ रहा करती थी संक्रांति की तातीलात की वजह से अब खाली देखी गई हैं। लेकिन शाम के औक़ात में हैदराबाद के पुराने शहर से लेकर मौज़म जही मार्केट, मेहदीपट्टनम, टोली चौक की रूट पर गैर मामूली ट्रैफिक देखी जा रही है। हैदराबाद पुलिस कमिश्नरेट हुदूद में कमिश्नर पुलिस हैदराबाद CV आनंद IPS की हिदायत के बाद चीनी मांझा की फरोख्त करने वाले और इसे खरीदने वालों के खिलाफ बड़े पैमाने पर कार्रवाइयाँ जारी हैं। इस सिलसिले के तहत टास्क फोर्स ने कई कार्रवाइयाँ अंजाम दी हैं।
एडिशनल डीसीपी टास्क फोर्स ए श्रीनिवास राव ने मीडिया कॉन्फ्रेंस में खिताब करते हुए बताया कि हैदराबाद कमिश्नरेट के मुख्तलिफ जोन्स में चीनी मांझे की खरीदो फरोख्त के खिलाफ कई कार्रवाइयाँ की गई हैं। उन्होंने बताया कि 7 जोन्स में तकरीबन 107 केसेस दर्ज किए गए हैं, जबकि 148 अफराद को इस सिलसिले में हिरासत में लिया गया है। उन्होंने बताया कि 88 लाख रुपए से जायद मालियती चीनी मांझे को भी बरामद किया गया है। उन्होंने मजीद बताया कि चीनी मांझे की खरीदो फरोख्त पर पाबंदी आयद है और इसकी खिलाफ वर्जी करने वालों के लिए सख्त कार्रवाई की जाएगी। आप लोगों को शुक्रिया अदा कर रहा हूँ हमारा प्रेस मीट को आने के बजाय। ये जो है संक्रांति फेस्टिवल आपको मालूम है, ये ईद है। ये ईद में काइट्स फ्लाइंग करने का बहुत शौकीन से बच्चे करते हैं। इस सिलसिले में जो पहले ये चाइनीज़ मांझा जो है, ये बायोडिग्रेडेबल मटेरियल नहीं रहता उसमें। वो चाइनीज़ मांझा को लोग मार्केट में बहुत अवेलेबल रहता था, इसको बैन कर दिए। इसको बैन करने के बाद हम लोग हमारा कमिश्नर साहब के इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक एडवांस हमारे को इंस्ट्रक्शंस दिया गया है। ये फेस्टिवल से पहले इसको कंप्लीट एराडिकेट करना है। हैदराबाद में ये मिलना नहीं चाहिए बोल के हमारा साहब जो इंस्ट्रक्शन दिए, वो इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक हमारे सारे टास्क फोर्स टीम्स 7 टीम्स हम मिलके तकरीबन 120 केसेस हम लोग बुक करें और 140 लोगों को हम गिरफ्तार करें इसमें। और इस सिलसिले में हम लोग 7000 से बढ़ के ये जो प्रोहिबिटेड मांझा है, वो मांझा को हम लोग बरामद करके वो लोगों को कोर्ट में पेश कर दिया गया। और तकरीबन 90 लाख का वर्थ मटेरियल है ये पूरा, ये सब बरामद करके हम कोर्ट को पेश करें। और ये आने वाले 2 दिन में हमारा अपील है पब्लिक से और बच्चों से जो काइट फ्लाइंग करते हैं, ये जो चाइना मांझा और कहीं भी मिले करे तो हमारे को इंटीमेशन दे, उसको एनकरेज नहीं करे बच्चों को। फैमिली वो पेरेंट्स जो है बच्चों का काइट फ्लाई करने के लिए जो अपना लोकली जो बनता है वो मटेरियल के जरिए वो लोग काइट फ्लाइंग कर सकते और एंजॉय भी कर सकते। सैप किडनी सेंटर के सरबराह डॉक्टर शुएब अहमद खान ने मलेशिया का कामयाब दौरा करते हुए वहां पर गुर्दों के अमराज के सिलसिले में शऊर बेदारी सेशंस भी मुनक़िद किए हैं, जबकि उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म मलेशिया अनवर इब्राहिम से भी इस सिलसिले में मुलाकात की है। गुर्दों के अमराज के बेहतर इलाज के लिए हिंदुस्तान एक बेहतरीन मुल्क है और हैदराबाद इस शोबे में नुमायां मकाम रखता है, जहां पर नित नई टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल करते हुए इन अमराज से लड़ने और मरीजों को राहत पहुंचाने का काम जारी है। इन ख्यालात का इज़हार डॉक्टर शुएब अहमद खान, डायरेक्टर ऑफ नेफ्रोलॉजी एंड ट्रांसप्लांट सर्विसेज और सैप किडनी सेंटर सालारजंग कॉलोनी टोली चौकी ने मलेशिया में मुनक़्क़िदा शऊर बेदारी प्रोग्राम से खिताब करते हुए किया। हालिया अरसे में गुर्दों के अमराज और उनका इलाज पर शऊर बेदारी प्रोग्राम्स के तहत वो मुख्तलिफ ममालिक का दौरा कर रहे हैं। इससे कबल उन्होंने नामीबिया और सिंगापुर का भी कामयाब दौरा किया था, जबकि मलेशिया में अपने दौरे के दौरान डॉक्टर शुएब अहमद खान, डायरेक्टर ऑफ नेफ्रोलॉजी एंड ट्रांसप्लांट सर्विसेज और सैप किडनी सेंटर ने नेशनल किडनी फाउंडेशन मलेशियन किडनी सेंटर्स का कामयाब दौरा किया और वहां दी जाने वाली सहूलतों का भी मुआयना किया।
उन्होंने प्राइम मिनिस्टर मलेशिया अनवर इब्राहिम से खैर सगाली मुलाकात की और अपनी जानिब से चलाई जा रही मुहिम से उन्हें वाकिफ करवाया। प्राइम मिनिस्टर अनवर इब्राहिम ने इस मौके पर उनके मिशन की सताइश भी की। प्राइम मिनिस्टर मलेशिया अनवर इब्राहिम ने उन्हें भरपूर ताउन का भी तयक्कुन दिया। इलाहाबादी डॉक्टर शोएब अहमद खान ने मुख्तलिफ डायलिसिस सेंटर्स का भी इस मौके पर मुआयना किया, जहां किडनी के मरीजों को डायलिसिस फराहम किया जा रहा था। इस मेडिकल दौरे का एक और मकसद हुकूमती सतह पर किडनी मरीजों को इलाज की गरज से हैदराबाद लाना और ट्रांसप्लांट सर्विसेज को भी यकीनी बनाना है, ताकि तेलंगाना रियासत में हेल्थ टूरिज्म को भी फ़रोग दिया जाए। डॉक्टर शोएब अहमद खान के हमरा डॉक्टर नियाज अहमद खान चेयरमैन सैप ग्रुप और डॉक्टर मोहम्मद आकिब अहमद खान मैनेजिंग डायरेक्टर सैप ग्रुप भी मौजूद थे। सऊदी अरब में कई सालों से मुकीम डॉक्टर अनवर खुर्शीद को इस साल भारतीय प्रवासी सम्मान अवार्ड से नवाजा गया है। भुवनेश्वर में मुनक्किदा एक तकरीब में सदर जमहूरिया हिंद के हाथों उन्हें ये अवार्ड पेश किया गया। डॉक्टर सैयद अनवर खुर्शीद, जो सऊदी अरब में भारतीय कम्युनिटी के काबिल एहतराम रुकन हैं, उनको प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड से नवाजा गया है। ये अवार्ड बैरून मुल्क रहने वाले भारतीयों के लिए सबसे बड़ा शहरी एजाज़ है और उनकी तिब, तालीम और समाजी बहबूद के शोबों में 4 दहाइयों की बेमिसाल खिदमात का एक एतराफ़ है। ये एजाज़ भारत की सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने भुवनेश्वर में मुनक्किदा प्रवासी भारतीय दिवस की शानदार तकरीब में उन्हें पेश किया। डॉक्टर अनवर खुर्शीद की अनथक मेहनत और खुलूस ने बेशुमार लोगों की ज़िंदगियों में बेहतरी लाई है और वो हकीकी मानों में खिदमत और अज़्म की अलामत है। ये एजाज़ डॉक्टर खुर्शीद की अनथक मेहनत और दूसरों की ज़िंदगी में फ़र्क पैदा करने के अज़्म की भी एक पहचान है। डॉक्टर अनवर खुर्शीद का काम कुर्बानी और हमदर्दी की एक मिसाली कहानी है। उन्होंने सेहत की सहूलियात को बेहतर बनाने, तालीम के फ़रोग़ और कमज़ोर तबक़ात को सहारा देने में अपनी पूरी ज़िंदगी वक्फ़ कर दी। उनका यह एजाज़ सिर्फ उनके ख़ानदान और आबाई इलाक़े के लिए ही फ़ख्र की बात नहीं, बल्कि पूरी भारतीय कम्युनिटी के इस जज्बे का जश्न है जो दुनिया के किसी भी कोने में हमें मुत्तहिद रखता है। इस मौके पर दोस्त अहबाब ने डॉक्टर अनवर खुर्शीद को दिली मुबारकबाद भी पेश की है। डॉक्टर सैयद अनवर खुर्शीद, सऊदी अरब से आपको चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में सराहनीय कार्यों के लिए सम्मानित किया जा रहा है। आप एक प्रतिष्ठित चिकित्सक हैं। लगभग 45 वर्षों का आपका अनुभव है गंभीर देखभाल और रोगी प्रबंधन में। सऊदी अरब में आप आयुष को बढ़ावा दे रहे हैं। डॉक्टर अतुल अरविंद तिमुरनिकर। आखिर में देखते हैं सुर्खियां एक बार फिर। वज़ीर आला तेलंगाना ए रेवंत रेड्डी ने रियासत की आवाम को दी भोगी की मुबारकबाद, नेक तमन्नाओं का किया इजहार।
बीआरएस रुकन असम्बली कौशिक रेड्डी के खिलाफ हुजराबाद पुलिस ने केसेस किए दर्ज। रुकन असम्बली डॉक्टर संजय ने स्पीकर से की शिकायत। इंदिरम्मा भरोसा पर अमलावरी को यकीनी बनाया जाए। बीआरएस कायद टी हरीश राव ने तेलंगाना हुकूमत से किया मुतालबा। हैदराबाद कमिश्नरेट हुदूद में चीनी मांझे की खरीदो फरोख्त करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन। ताहाल 148 अफराद गिरफ्तार। 88 करोड़ रुपए से जायद मालियती चीनी मांझा किया गया जब्त। पेद्दापल्ली में सड़क हादसा, बाप और बेटा फौत। सड़क पर दिलखराश मंजर। मुतल्लिका पुलिस ने की ज़ाब्ते की कार्रवाई। इसी के साथ रूबी न्यूज़ यहीं इख्तिताम पजीर होती हैं। रियासती, कौमी और बैन अवी खबरों के लिए देखते रहिए रूबी न्यूज़। हम इस उम्मीद के साथ आपसे इजाज़त लेंगे कि आपका आने वाला दिन अच्छा होगा। अस्सलाम वालेकुम।